जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तेरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरे नाम संकीर्तन नमो सत की जय। भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरे बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Hare Krishna. My wishes on the feet of all those who are present here or those who are yet to join us. Hare Krishna. We shall be reciting from Canto 1, chapter 18, text 16 onward today. Savai Mahabhagavata Parikshit Enapavargakyam Abhadra Buddhihi Jnanena Vayasika Sabdatena Biji Khagendra Jwapadamulam. Savai Mahabhagavata Parikshit Enapavargakyam Abhadra Buddhihi Jnanena Vayasika Sabdatene Bije Khagendra Dhwajapadamulam. Savai Mahabhagavata Parikshit Enapavargakyam Abhadra Buddhihi Jnanena Vayasika Sabdatena Bije Khagendra Dhwajapadamulam. Word meaning: Saha Vaha वे निश्चय ही महाभागवतः उच्च कोटि का भक्त परीक्षित राजा येन जिससे अपवर्ग आख्याम मोक्ष काम से अध स्थिति बुद्धि ज्ञानेन ज्ञान से वैया सखी व्यासपुत्र शब्दितेन द्वारा उच्चारित भेजे ले जाया गया खग इंद्र पक्षों का राजा गरुड़ ध्वज पताका झंडा पादमूलम पैरों के तलुए। ट्रांसलेट परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रपाद महाराज की जय। हे सुत गोस्वामी कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराजा परीक्षित जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय है। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यासपुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा हुआ है। सो सम ऑफ यू वांट टू रीड परपोर्ट? ओके प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। মোক্ষ মার্গে অনুসরণকারী পরমার্থীদের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে। সেই পরমার্থ অনুশীলনকারীরা নির্বিশেষবাদী এবং ভগবত ভক্ত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ভগবত ভক্তেরা ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের আরাধনা করেন আর নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মজ্যোতি নামক ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিটা ধ্যান করেন। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে মহারাজ পরীক্ষিত ব্যাসনন্দন শ্রী সুখদেব গোস্বামী বাণী শ্রবণ করার মাধ্যমে ভগবানের শ্রীপাদ পদ্ম লাভ করেছেন। শ্রী সুখদেব গোস্বামী প্রথমে নির্বিশেষবাদী ছিলেন, যে কথা তিনি নিজেই শ্রীমদ ভাগবতে 2.1.9 স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরে তিনি ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তার ফলে ভগবত ভক্তি হন। এই প্রকার দুই পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত ভক্তদের বলা হয় মহাভাগবত ও সর্বোচ্চ শ্রেণীর ভক্ত। ভক্ত সাধারণত তিন প্রকার, যথা প্রাকৃত, মধ্যম ও মহাভাগবত। প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ অধিকারীর ভক্ত হচ্ছেন যারা তাদের ভগবান সম্বন্ধে, ভগবত ভক্ত সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান নেই অথচ মন্দিরে ভগবানের পূজা করেন। মধ্যম অধিকারী দ্বিতীয় স্তরের ভক্ত ভগবান ভক্ত নির্বোধ এবং বিদ্বেষী ভক্ত সম্বন্ধে ভালোভাবে অবগত।
আর মহাভাগবত বা সর্বোচ্চহীন ভক্তরা ভগবত সম্বন্ধে সবকিছু দর্শন করেন এবং সকলকেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বলে দর্শন করেন। মহাভাগবতেরা তাই ভগবত ভক্ত এবং অভক্তের মধ্যে কোনো ভেদ দর্শন করেন না। মহারাজ পরীক্ষিত ছিলেন তেমনি একজন মহাভাগবত, কেননা তিনি ছিলেন মহাভাগবত সুখদেব গোস্বামীর শিষ্য। তিনি সকলের প্রতি সমভাবে কৃপাপরায়ণ ছিলেন এবং তাই তিনি কলিকে পর্যন্ত কৃপা করেছিলেন অন্যেরা কৃপা। পারমার্থিক ইতিহাসের পাতায় বহু নির্বিশেষবাদী ভক্তে পরিণত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু কোনো ভক্ত কখনো নির্বিশেষবাদী হননি। তার থেকে প্রমাণিত হয় যে পারমার্থিক স্তরে ভক্তের স্থান নির্বিশেষবাদীদের ঊর্ধ্বে। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতাতে বর্ণনা করা হয়েছে যে নির্বিশেষবাদীর স্তরে আটকে পড়েছেন যে ব্যক্তি তার লাভের থেকে অধিক কষ্ট ভোগ করতে হয়। তাই সুখদেব গোস্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান মহারাজ পরীক্ষিতকে ভগবানের সেবা লাভে সাহায্য করেছে। পূর্ণতা প্রাপ্তির এই স্তরকে বলা হয় অপবর্গ বা মুক্তির চরম অবস্থা। মোক্ষ সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান, ভৌতিক জ্ঞান, জড় জগতের বন্ধন থেকে প্রকৃত মুক্তিকে বলা হয় মোক্ষ, কিন্তু ভগবানের অপরাকৃত সেবা লাভ হচ্ছে মুক্তির চরম অবস্থা। এই স্তর জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের মাধ্যমে লাভ হয় যে কথা পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শ্রীল সুখদেব গোস্বামীর মতো মহাভাগবত যে পূর্ণ জ্ঞান দান করেন তা লাভ করার ফলে ভগবানের দিব্য সেবা লাভ। হরে কৃষ্ণ। उमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमन्तमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुसुधापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागरं रघुनाथं पितरं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्ति कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाबुधले श्रीमते जपताक समनिधि नमने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरधराधामदाय नगरग्रामतारणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णविष्टाबुधले श्रीमते भक्तिवेदांत समनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशादेस्तारणे। जय श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद की अनुकंपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से श्रीमद् भागवतम की सायंकाल कथा लगातार चल रही है। आज हम सुनेंगे शौनकादि ऋषि से। वो कह रहे हैं सवै महाभागवतः परीक्षित येनापपर्गाख्यातम् अभद्र बुद्धिः ज्ञानीन वैयासिक शब्दितेन भेजे खगेन्द्रज पादमूलम। कहते हैं हे सुत गोस्वामी गुरु महाराज, कृपा प्लीडिंग, कृपा यानी अगर आपकी मर्जी हो भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें। क्यों उन्हीं कथाओं को? क्यों? जिनसे महाराजा परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके। डिसिप्लिक सक्सेशन वही चाहिए जो उन्होंने सुनाया है, अपनी तरफ से नहीं। और ऋषियों ने बोला वो भी नहीं चाहिए, कहीं से आपने सुना नहीं चाहिए। जो आपने अपने गुरुदेव से सुना है वही। और ठीक प्रकार इस्कॉन में जब तक हम सब प्रभुपाद की दी हुई वाणी को बोलते रहेंगे, हमारा इस्कॉन फलता रहेगा, फूलता रहेगा। बस प्रभुपाद की वाणी या प्रभुपाद ने जिसका उल्लेख किया, चाहे वे विश्वनाथ दास चक्रवर्ती हों, चाहे बलदेव विद्याभूषण हों, या और हमारे सठ गोस्वामी हों, उन तक हम सीमित रहें। जो प्रभुपाद ने कहा अगर वही बोलेंगे तो हमारे इस्कॉन जो है दिनों रात जो है चौगुनी उन्नति करेगा। तो ये कह रहे हैं डिसिप्लिन सक्सेशन जो आपने सुना है। किससे सुना है? महाभागवत। और महापरीक्षित भी महाभागवत है, सुनने वाले भी महाभागवत, सुनाने वाले महाभागवत। और उसके बाद क्या हुआ? उनको भगवान के चरण कमल मिले। अब कोई कह सकते हैं भाई कैसे मालूम कौन चरण कमल मिले? हमारे जो बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, जैसे नारद मुनि हैं, वो उनको ऊपर भी देखते हैं, नीचे भी देखते हैं, बोलते हाँ वो पहुंचा वहां गया वहां। तो ये प्रमाण है, ये नहीं है कि विमिसिकली हम बोले ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो नहीं, प्रमाण है।
तो कहते हैं उन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यासपुत्र के द्वारा हुआ है, बस डिसिप्लिक सक्सेशन। और कम से कम हमारे हिंदू धर्म में हमारे 4 जो संप्रदाय हैं उन्हीं में ही जो शिक्षा प्राप्त करेगा, भगवान की भक्ति उन्हीं को प्राप्त होगी। औरों को क्लेशो अधिक तरह से शाम, बहुत सारे क्लेशों का जो है आमना सामना करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रपोर्ट में कि प्रभुपाद जी प्रपोर्ट में लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ना पहले इम्पर्सनलिस्ट थे। कथा सुना है आपको? मैं सुनना है तो बोलो, कथा बताएंगे आपको। एक बार पार्वती जी ने शिव से अनुरोध किया, यार तुम जिसके ध्यान में रहते हो ना, जिसको तुम दिन भर माला जपते हो ना, उसके बारे में हमें कुछ बताओ। तो तब माँ उमा या सती जो भी हो, पार्वती है, तो शिव जी ने कहा अच्छा सुनो। तो शाम की बात थी, शिव जी ने जो है कथा सुनानी शुरू कर दी और श्रोता सोता है और मां पार्वती कथा सुनते सुनते सो गई। एक बार वो बहुत बड़े प्रचारक हैं, वो भागवती कथा करते हैं, तो बोल रहे हैं एक रात 10 साढ़े 10 करीब मुझे एक बुढ़िया का फोन आया। बोला बेटा तुम हजारों साल जियो, तुम्हारी कथा में वो आनंद है जो आनंद कहीं नहीं है। बोला कौन सी कथा? बोले नहीं सुनी तो नहीं है, लेकिन जो कथा शुरू करते मुझे अच्छी नींद आ जाती। उसके बाद घर में मुझे नींद ही नहीं आती, नाती परेशान करते हैं, ये परेशान करते हैं, लेकिन बेटा जब तुम्हारी कथा में आती हूँ, जैसे तुमने करताल उठाया मुझे अच्छी नींद आ जाती। तो ठीक इसी प्रकार पार्वती जी भी सो गई और बीच में जो हाँ करना पड़ता ना, तो वहां बगल में एक तोता था जो बाद में शुक्राचार्य बने। जो तो तोता था, अब मां सो गई। अब ये कहानी में विघ्न ना पड़े तो शिव जी कह रहे हैं सुन रही हो ना? तोता बोले हाँ हाँ हाँ। तो ये कथा चलती रही, और जब कथा चलती है इसका अंत नहीं होता, चलती रही चलती रही चलती रही। और जब शिव जी बोले पार्वती को संबोधित करते हैं समझ रही हो ना? तोता बोले हाँ। उसके बाद काफी समय बीत गया, शिव जी ने आंखें खोली और देखा अरे पार्वती तो सो रखी है। अब देखा हाँ हाँ कौन कर रहा था, वहां देखा सुख है। तो भगवान शिव उसको अपात्र जानते हुए कि अपात्र ने भगवान की दीक्षा ग्रहण की है, उसके पीछे भागे मारने के लिए। अब यहां से आगे शुक्राचार्य दौड़ रहे, सुख दौड़ रहे हैं, और होते कर तो पृथ्वी में आ गए। और पृथ्वी में जो हस्तिनापुर के नजदीक एक जंगल था, वहां वेदव्यास अपनी पत्नी, उसका नाम भी अरिणी था, वो बात कर रहे थे। तो जैसे मां अरिणी ने मुंह खोला, तोता उनके पेट में चला गया। और ये तोता वही शुक्राचार्य था। जब पेट में चला गया, अब शुक्राचार्य ने क्या हुआ, पेट से बाहर आने का बोला मैं नहीं आऊंगा बाहर। क्यों बाहर नहीं आऊंगा? शिव त्रिशूल लेके खड़े हैं, जैसे बाहर आऊंगा ये मार देगा। तो बोला मैं माँ के उधर में रहूंगा, पेट में रहूंगा, नहीं आया। तो 16 साल तक शुक्राचार्य जब मारिणी के पेट में रहे, तो वेद व्यास ने बोले यार क्या करूं क्या करूं। भगवान कृष्ण को बुलाया कि यार ये बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, इसको बोल दे। तो भगवान कृष्ण ने कहा शुक्राचार्य को, सुखदेव को, कि मेरी माया तुमको नहीं जकड़ेगी। और मैं शिवजी को बोलता अपने धाम चले जाओ। ये बेचारा अंदर खत्म हो गया। शिवजी चले गए, और तब जाके जब शुक्राचार्य पैदा हुए, सुखदेव गोस्वामी पैदा हुए, तो आपने तो सेकंड कांटो पढ़ाई है। जैसे पैदा हुए एकदम उठे और भागने लगे। कहाँ? जंगल की वो। क्यों? वो थे अरण्य प्रिय। और अरण्य प्रिय जब जंगल चले गए, तो यहाँ से पीछे से वेद व्यास उनको आवाज दे रहे हैं, लेकिन बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, नहीं मिले। लेकिन वो क्या बताए, निर्विशेषवादी बने। उनको मालूम है भगवान है, भगवान सब भगवान की माया है।
सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, जो भी दिखता है वो ब्रह्म है, भगवान है, लेकिन उसका कोई आकार थोड़ी हो सकता है, उसका आकार नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी वो श्लोक कोट कर रहे हैं। ये श्लोक है, परिनिष्ठितो अपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेतसा राजर्षि आख्यानाम यदधीतवान। प्रभुपाद कहते हैं, ओ सेंटली किंग, ये परीक्षित को कह रहे हैं, I was certainly situated perfect in transcendence, yet I was still attracted by the delineation of the pastime of the Lord, who is described by enlightened verses. उसने कहाँ सुना? शिव जी से सुना, भगवान की कथाएं शिव जी से सुनी। देखा नहीं है तो पता चला नहीं भगवान की कथा है, भगवान के हाथ पैर हैं, लेकिन ऐसे नहीं होते, भगवान ऐसे नहीं है, इम्पर्सनल। तो परीक्षित कहते हैं, ये परीक्षित देखो, मैं पहले इम्पर्सनलिस्ट था, अब मैं पर्सनल बन गया हूं, क्या मेरे से कथा सुनना चाहोगे? तो परीक्षित महाराज ने हाँ कह दिया। अब आप कहें ये कैसे हो सकता है कि एक निर्विशेषवादी और भगवान का भक्त बन जाए? अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो सार्वभौम भट्टाचार्य निर्विशेषवादी, इम्पर्सनलिस्ट, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु से भगवान की कथाओं का उन्होंने सुना, श्रवण किया, उनका हृदय पिघल गया और वो प्रकाशानंद शास्त्री जैसे हजारों लोग जो थे, मुनि जो थे, वो भगवान के भक्त बन गए। शरण बताम सो कथा कृष्ण। तो परीक्षित महाराज को कहा, देखिए मैं पहले निर्गुण में विश्वास करता था, ब्रह्मवादी था, अब मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं, कथा सुनोगे? हाँ कहिए। अब वो कहेंगे, ये जब निर्विशेषवादी थे तो ये वो कैसे बन गए, भक्त कैसे बन गए? यहां लिख रहे हैं कि मैंने ट्रांसेंडेंटल, मुझे मालूम था, भगवान की लीलाएं मुझे मालूम थी, मैंने सुना था, लेकिन इतना विश्वास नहीं था कि भगवान की लीला होती। कहते एक बार बद्री आश्रम में वेद व्यास अपने शिष्यों के साथ रहते थे और वेद व्यास को एक पात्र की जरूरत थी जो श्रीमद् भागवतम सुन सके, समझ सके, लोगों को समझा सके। तो उन्होंने अपने आगे अपने जो उनके शिष्य थे वो सुबह गाय लेके जाते, गाय के घास लेके आते, लकड़ी लेके आते, फूल लेके आते, पत्र लेके आते, फल लेके आते, और उनको कहा गया कि देखो जब तुम गाय चराने जाओ तो उच्च सुर में श्रीमद् भागवतम गाओ, लेकिन उसकी 3 पंक्तियां गाना, चौथी मत गाना। हमेशा उनका यह कारण था। तो ये बच्चे जाते, झुंड में जाते, अरण्य प्रिय थे, गाय को चराते और बोलते, अहो बकीयम स्नकालकूट जिज्ञासया पादयप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रयुच्चिता ततोन्यम। एंड चौथी लाइन क्वाइट, चौथी लाइन मुंह में बोलते थे, बाहर नहीं बोलते थे। या फिर ब्रहा पीड़ नटबुर कर्णयो कर्णिकार विवद्वास कनक पिपस वैजंति चमालम रंघ्रान वेणु अदुर सुदया पुरयन्न गोवृंदय। 4th लाइन चुप। अभी कई दिन से सुखाचार्य सुखदेव गोस्वामी इन बच्चों को ये कहते सुनते, और जब ये लाइन को पूरी अनुष्टुप छंद पूरा नहीं करते तो सुखाचार्य को गुस्सा आ गया। एक दिन बच्चों के सामने गए, बोले तुम कितने बेवकूफ हो तुम लोग, अनुष्टुप छंद को पूरा गाना चाहिए। तो वो लगे हमारे गुरु की आज्ञा है कि हम अनुष्टुप छंद को तीसरा नहीं गाएंगे। बोला क्यों, कौन है तुम्हारा गुरु? बोला वो भागवतम के बहुत ज्ञानी है। तो तुमको क्यों मना किया? बोला वो मालूम नहीं। तो शुक्राचार्य ने कहा अच्छा, इतना शानदार जो रचना करने वाला है वो चौथी लाइन को क्यों मना करता है? तो उनके दिल में उत्सुकता जागी और कहने लगे यार अगर तुमको कष्ट ना हो तो क्या मैं
तुम्हारे गुरु को मिल सकता हूं? बोला हाँ मिलो। तो जब उस दिन सुखदेव गोस्वामी इन बच्चों से बात कर रहे थे तो थोड़ी देर हो गई, सांझ हो गई, थोड़ी रात पड़ने लगी। यहां वेद व्यास अपने आश्रम में व्याकुल हैं कि बछड़े अभी तक नहीं आए, गायें अभी तक नहीं आई, मेरे उनको जो शिष्य हैं उनको क्या हुआ होगा। वो एक टके लगाए देख रहे थे, तब तक देखते हैं गायों की खुर की आवाज है, खुट 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 गिन 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 गिन। फिर देखते हैं उनके बच्चे खिलखिला के हंसते आ रहे हैं, खिलखिला के आज ये हो गया, आज हमें वो मिल गया। पहली बार गुरु के अलावा एक आदमी हमको डांटा, पहले तो सिर्फ गुरु हमारा डांटता था, इसने भी डांटा। और ये बात जब वेद व्यास ने सुनी, उन्होंने कहा कौन इनको डांट सकता है, कौन डांट सकता है। तो धुंधला था, ये बच्चे एक किनारे हुए, शुक्राचार्य नग्न धरंग हैं, नग्न दिगंबर हैं, आते हैं, पिता को देखते हैं, पिता ने पुत्र को देखा, पुत्र ने पिता को देखा। सुखदेव गोस्वामी ने दंडवत प्रणाम किया, वेद व्यास ने उनको अंगीकार किया कि बेटा तुम लौट आए हो। बोला पिताजी मैं ये जानना चाहता हूं कि इन बच्चों को तुमने गलत शिक्षा क्यों दी। बोले क्या गलत शिक्षा? कि अनुष्टुप छंद के 3 पद पढ़ते हैं, 4था नहीं पढ़ते। वो क्यों? बोला बेटे मैंने तुम्हारे लिए रखा। बोले मेरे लिए रखा, क्या है? बोले श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण की कथा है, सुनोगे? तो कहते हैं उस वक्त शुक्राचार्य को अपने पिता से इस भागवतम का ज्ञान मिला, ज्ञान मिला पिता से। और जैसे ज्ञान संपूर्ण हुआ फिर वो चले गए। पहले अरण्य प्रिय थे, अब गोविंद प्रिय हो गए। पहले वो जो थे अरण्य परायण थे, अब वो नारायण परायण हो गए। तो इस बात को आप कहते हैं उस परीक्षित से, क्या मैं बोलूं? और परीक्षित कहते हैं हाँ आप ही बोलिए। और उस असेंबली में कौन कौन नहीं है आपको मालूम है? नारद हैं, व्यास हैं, वशिष्ठ हैं, शक्ति हैं, पाराशर हैं, पूरा खानदान वहां खड़ा है, पूरा का पूरा खानदान, और उससे सुनना चाहते हैं। क्यों? कि आपने देखा होगा गाने लिखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन गाने वाला हर आदमी नहीं हो सकता है। गाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग। तो ये जो गीत है ये सुख संहिता है, इसको सुख मुखाद दर्व संयुतम है, 3rd श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो तब सुखदेव ने ये कहानी शुरू की, बताने लगे। और आज सौनकर कहते हैं हमें वही सुनना है उसी राग में, उसी भाव में। देखिए एक तो आदमी बोलता है, बहुत बोलते हैं, एक आदमी भाव से बोलता है। बहुत सारे लोग प्रभावित करते हैं। अकेले भक्ति वेदांत स्वामी शैल प्रपाद जिसने लोगों को प्रभु भावित किया, प्रभावित नहीं किया, प्रभु भावित किया। कृष्ण को उनको दान में दिया, प्रभु भावित। बाकी बोलने वाले तो प्रभावित तो करते हैं। जैसे कल परसों पढ़ रहे थे, जितने लोग ये सप्ताह करते हैं, कितना शानदार अच्छे गाने बजाते हैं, म्यूजिक है, डांस है, थोड़ी थोड़ी चुटकुले भी हैं, सब कुछ है। लेकिन जैसे आप सबने भी पढ़ा सुना, उसके बाद 7 दिन के बाद सप्ताह खत्म, ये अपने इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं, ये अपने इंद्रिय तृप्ति में लग जाते हैं। जीवन किसी का नहीं बदलता। लेकिन प्रभुपाद की कथाओं को सुनकर, प्रभुपाद के जो हैं ये शब्दार्थ और भावार्थ को सुनकर लोगों का जीवन बदल गया, उन्होंने प्रभावित किया। तो सौनक आदि कह रहे हैं हमें वही सुनना है। क्यों? उसको सुनने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी चले गए, लेकिन महाराज परीक्षित बैठे रहे और तक्षक उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, क्योंकि तब तक वो समाधि में चले गए थे। तो वो चाहते हैं हम भी भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करें, और ये सब भगवान की कथाओं के द्वारा। जैसे हम परसों कह रहे थे, तब कथा अमृतम, ये कथाओं के द्वारा अमृत है। कई साल से हम भी सुन रहे हैं,
हम भी सुना रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आप भी सुना रहे हैं, ये अमृत है, अपौरुषेय है। ये इसमें कोई इसका क्षय नहीं है। बहुत सारे हमको प्रश्न करते हैं कि बस भगवान कृष्ण के वो ये 50 लीलाएं और कुछ नहीं है, तो भगवान क्या उम्र भर यही दही माखन छोड़ते रहेंगे, रण करा दें, बस और कुछ नहीं है। मैंने कहा ये तुम्हारे लिए, हमारे लिए है। भगवान और भी कुछ कार्य करते हैं, अनेक लोकों में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत है, 1 2 3 नहीं है। खाली गोपी बस्तर हर नहीं है, खाली जो है माखन चोर नहीं है, गिरिराज को उठाना नहीं है, और भी चीजें हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। और आगे सुन ही कहा ही बहुविधि संता। एक कथा को हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से, अलग अलग भाव से कहता है, और इसलिए वो सौनकादि कह रहे हैं आपने सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना है, आप पात्र हैं, आपके अंदर पात्रिता है, हम वही सुनना चाहते हैं। आगे प्रभुपाद ने एक और श्लोक कोट किया है, 4 near which श्लोक was that? No. Yeah, 12:5. क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। For those whose minds are attached to the unmanifested impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. तो ये impersonal feature of the Lord, जो भगवान के जो ये अव्यक्त हैं, ये जो embodied भी हैं, जो शरीरधारी हैं, जो देहधारी हैं, इनके लिए बड़ा कठिन है। योगियों के लिए हो सकता है, मुनियों के लिए हो सकता है, ऋषियों के लिए हो सकता है, लेकिन देहधारी हम जैसे लोगों के क्लेशोदिक तरह से क्लेश ही क्लेश है, क्योंकि मन तो स्थिर नहीं होता है, और जब मन स्थिर नहीं होता है तो उसके बाद क्या होता है? चंचला ही मना कृष्ण। कितना चंचल, बहुत चंचल है। जिस प्रकार समुद्र में तरंगें आती हैं, कोई तरंगों को गिन नहीं सकता है, उसी प्रकार हमारे भी विचार आते हैं, और ये विचार आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। इस प्रकार मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन कहते हैं चंचल ही मना कृष्ण परमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। मैं वायु को पकड़ सकता हूं, लेकिन मन को नहीं। तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। फिर अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। और फिर कहते हैं यतो निश्चलति मन चंचलम स्थिरम ततो नियमेत आत्मनेवावसं नवेत्। From wherever the mind wanders due to the flickering and unsteady nature, one must certainly withdraw it and bring it back under the control of the self. तो क्लेश, भक्ति में क्लेश नहीं है, भक्ति में बंधन नहीं है। यहाँ प्रभुपाद ने बोला पवर्ग वर्ड आया है, अपवर्गाख्याम। जो पवर्ग है ना, प फ ब भ म, ये संस्कृत के हैं, क्या बोलते हैं, वर्णमाला है।
सो प से परिश्रम, और जब हम परिश्रम करते हैं फ से फेड़, और ब से बंधन, और भ से भय, और यम से मृत्यु। सो ये प वर्ग हैं, प फ ब भ म, इसको होना चाहिए अपवर्ग, जो इनसे छुटकारा दिलाए। तो यहां पे कहते हैं परीक्षित महाराज जो हैं अपवर्ग हैं, उनको न तो परिश्रम करने की आवश्यकता है, न उनको फेड़ निकलेगा, न उनको बंधन होगा, न उनको भय होगा, न मृत्यु होगी। ये अपवर्ग है। सो भक्ति में सब अपवर्ग है। और भक्ति आनंद का विषय अगर नहीं होता तो लोग हजारों साल तक जो है, और कई कई सालों तक है, लोग जुड़े नहीं रहते, चले जाते और कुछ कर लेते। लेकिन भगवान से प्यार और भगवान से नाता जब जुड़ जाए तो आदमी आनंद में रहता है। तो इस साधना के जो हम सब करते हैं, इसकी 5 चीजें जो हमें बहुत ध्यान देनी पड़ेंगी, ध्यान देना चाहिए। इसको कहते हैं 5S मॉडल। 5S मॉडल। सबसे पहले साधना, भक्ति की प्रैक्टिस, सेवा, डीटी की सेवा या वैष्णव की सेवा, या धाम की सेवा, संग, एसोसिएशन, सदाचार, बिहेवियर, और 5वां है स्वाध्याय। तो साधना, सेवा, संग, सदाचार एंड स्वाध्याय। और स्वाध्याय में इनके फिर 5 डिवीजन और हैं: श्रवण, मनन, पठन, कीर्तन एंड कंटेम्पलेशन। तो जो इन चीजों को फॉलो करेगा, जो हम अनचाहे हमें वो सब करते हैं, हम जस्ट गिव द जिस्ट, हम अनचाहे सब करते हैं, लेकिन अगर साधना बराबर हो, सेवा बराबर हो, और अच्छा संग हो, संग का मतलब हजारों आदमी नहीं, लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड पीपल, जिसको भगवान में इंटरेस्ट हो, भगवान के बारे में सुनना चाहता हो, बताना चाहता हो, समझना चाहता हो। सदाचार और बिहेवियर, जो काम करना है उसी तीव्र गति से करना है। हमने आपको उदाहरण दिया था, जो शेर होता, बाघ होता है, वो जब भी शिकार करने जाता है वही तीव्रता है। तो हमारे अंदर भी भक्ति में वही तीव्रता होनी चाहिए। चाहे एक आदमी को प्रीच करें या 2 को प्रीच करें, 50 को प्रीच करें, वही तीव्रता, वही जुनून, वही धारणा, वही जोश, वही खरोश। ये नहीं कह रहे आज तो 2 दिन आदमी, आज क्या बोलना यार, आज नहीं। भक्ति में वही जोश होना चाहिए। और अगर जोश नहीं होगा तो ये बिहेवियर बढ़िया नहीं है। तो जो 5 मॉडल साधना का हम उसमें कम हो जाएंगे। तो उसी जोश और खरोश के साथ भक्ति करनी चाहिए। देखिए शौनक आदि को 1000 सालों के बैठे हैं, वही जोश है, नहीं हमें और सुनना है, हमें और सुनना, हमें और सुनना, और सुनना। लालायित हैं, आतुर हैं, सोच रहे कहीं सुध गोस्वामी चले न जाए भाई कहीं और जगह, नहीं पहले हमको बता दो फिर जाना। हमारी तृष्णा पूर्ण हो जाए, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, हम भगवान को पूरे से जान सके, बस। और आप कहें कि कैसे मालूम हम भगवान को संपूर्ण जानते हैं? प्रश्न आ सकता है, कैसे जान सकते हैं आप भगवान को संपूर्ण जानते हैं? अगर आपने समझ लिया कि कृष्णा इज सर्व कारण कारणम, यू हैव नोन कृष्णा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अगर आप ये समझ बैठे हैं, आपको इतिहास ना आता हो, संहिता ना आती हो, आपको श्लोक ना आते हो, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो या कुछ हो, लेकिन आप ये मानते हैं कि मेरे साथ जो हो रहा है, दुनिया में जो हो रहा है, ये भगवान ही उसके पीछे हैं, भगवान का हाथ ही है, तो आपने कृष्ण को जान लिया, बस। सर्व कारण कारण। तो जिसने ये जान लिया उसने सब जान लिया, चाहे उसको गीता का 1 श्लोक ना आते हों, कितने श्लोक, कोई फर्क नहीं पड़ता। भागवत में कितने श्लोक हों, किसने किसको सुनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन भगवान क्या कहते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। तो जो भगवान से प्रेम करेगा तो भगवान स्वतः ही उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जलाएंगे और उसको अनुभूति प्राप्त होगी, अनुभूति प्राप्त होगी। कभी आपने रेनबो देखा होगा, पता नहीं आपने कितनी, हमने अपने जीवन में एक जगह 6-6, 7-7 रेनबो देखे। कैसे हो सकता है भगवान ही जानता है। आपने एक रेनबो देखो, 2 देखो, हमने अपने जीवन में 6-6, 7-7 रेनबो देखे पहाड़ों में। तो देखो भगवान की कैसी कल्पना है, कितना शानदार है। इसको हम इंद्रधनुष भी कहते हैं, ये इंद्र का धनुष है जो रेनबो हम कहते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग मायूस होते हैं कि प्रभु मुझे श्लोक नहीं पता चलता, प्रभु जी ऐसा है, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं क्या बोलूं, कैसा करूं, बस भगवान के आश्रय हैं। मैंने अगर भगवान के आश्रय होना बस इतना बहुत है। भगवान के आश्रित होना ही बहुत बड़ी भक्ति है। यह आपने निवेदन कर दिया कि भगवान के भरोसे है। आप इस कली में होते हुए आपने जो है बलि महाराज के पद चिन्हों पे हैं। कोई आपको कहे कि आपको सब कुछ है, आपने सारे वेद पढ़ लिए, सारी संहिताएं पढ़ ली, सारे पुराण पढ़ लिए, क्या क्या आपने पढ़ा? आप कहें नहीं मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे मालूम है कृष्ण सारे कारणों के कारण है और मैं हूं क्योंकि कृष्ण ने मुझे बनाया है और मैं इसमें खुश हूं। ज्यादा मैं मांगता नहीं और कम वो देता नहीं। यह संबंध है हमारा भगवान के साथ। ना हम ज्यादा मांगते हैं और ना वो कम देता है, वो भी खुश और हम भी खुश। तो इस प्रकार देखिए सौनक आदि कहती है बस वो सुनाओ जो सुख ने सुनाया, वो सुनना चाहते हैं। परंपरा एवं विविशतो योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। मैंने ये कहानी ये गाथा विवस्वान को सुनाई है। तो भगवान ही कह रहे हैं मैंने नई डेवलप किया, नए लिखा है, नहीं रचे, नहीं, पौराणिक है। क्यों पौराणिक है? ये अक्षय है, इसका क्षय नहीं होता है, इसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो है वो शाश्वत है और ये हर समय के लिए, हर जगह के लिए, हर प्राणी के लिए बराबर लागू है। तो इस प्रकार आइए हम ये कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा प्रपात को पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा प्रपात को पढ़ करके उसी का प्रवचन करें, तो हमें भी प्रपात की सेवा करने का मौका मिलेगा। चाहे ये वाणी सेवा हो, करने का मौका मिलेगा और हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।